Okay, today we'll take history of a patient who is suffering from nasal obstruction, and a student of fourth year, will take his complete and detailed history. This history will include introduction of the history taker, followed by biodata, then history of presenting complaints, then past history and other histories, but we will not include other histories in this patient as we perform all parts of the history like past history, socioeconomic condition, personal history, history of surgeries and other histories in other departments as well. I am trying to teach you the method of history taking in ENT. Okay, so let's start our history. मेरा नाम शाफात खान है और मैं 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ डाउ मेडिकल कॉलेज में। मुझे आपकी बीमारी से मुतालिक आपसे कुछ सवालात पूछने हैं, आपकी इजाज़त है? ठीक है। आपका नाम जान सकता हूँ? मेहताब। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 17 है। और आपकी रिहाइश कहाँ की? गुलिस्तानी जो कराची। और आप काम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, आप स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। आप शादीशुदा हैं? नहीं है। ठीक है, अनमैरिड हैं। ठीक है। आप अभी यहाँ पर किस बीमारी की किस शिकायत से आए हैं? So now you will take history of presenting complaints. First, tell us what you will ask under the heading of history of presenting complaint from the patient. Then when we will finish history of presenting complaint, then we will proceed towards history of presenting illness. All right. First, take presenting complaint. All right. Okay. Yes, sir. Okay, so I'm gonna first ask him all the different complaints which brought him into the department. Okay, so I'll start now. Tell us briefly. Since when it started. What you will ask from the patient regarding presenting complaints. Okay, so I'm gonna ask him the time duration since which it started and the chief complaints which made him uncomfortable. Very good. Yeah, and okay, let's start. Okay, तो आपकी शिकायत क्या थी जिस शिकायत से आप यहाँ पर आए हैं? हमारी शिकायत ये थी कि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा, सांस लेने में तकलीफ होती है आपको? कितने टाइम से होती है? 6-7 साल से। 6-7 साल से होती है। अच्छा, ठीक है। इस सांस की तकलीफ के अलावा कोई और तकलीफ है आपको? 6-7 साल पहले आपकी ये शिकायत थी? नहीं थी, आप बिल्कुल ठीक थे? कोई और बीमारी थी आपको? ठीक है। So I've asked him whether his usual state of health basically. So he was in his usual state of health. I'm not asking about Okay. usual state of health. Yeah. That will cover under the heading of history of presenting Illness. Right now he is asking about presenting complaints. अब देखो मरीज ने आपसे क्या कहा? What did you ask from the patient? First tell me. I asked what was the complaint and the time duration. Okay. And so the complaint. And which complaint brought him to this hospital? The complaint was nasal obstruction. No. He is difficulty in suffering from nasal obstruction. Yes, difficulty in breathing. It will be you. Yes. Who will? I'll tell who will tell us or who will ask the patient specifically which type of difficulty in breathing he is suffering from. Yes. Because the difficulty of breathing can be due to nasal obstruction, can be due to any lung problem, Yes. can be due to any problem in the chest, airways. Okay? Yeah. तो ये आप बताएंगे कि किस वजह से उसको difficulty in breathing हो रही है. Okay? अब आप उसको emphasize कर रहे हैं कि he is having difficulty in breathing due to nasal obstruction. Because you are in ENT ward, Yes. you are taking history of ENT. हिस्ट्री ऑफ ENT ना? Yes. तो अब आपको ये पता जाहिर है मरीज इसीलिए आया होगा कि nasal obstruction जी। ये बात आप उससे क्लियर करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो आपको take presenting complaint again. ठीक है। आप किस शिकायत से आए हैं यहाँ पर? हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा, तो सांस आपको सीने में कहीं पर कोई दर्द होता है? नहीं। उससे सीधा पूछो कि आपने कहा कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये सांस लेने में तकलीफ आपको नाक की वजह से होती है या ये सांस लेने में तकलीफ आपको किसी और वजह से, यानी सीने में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है? बिल्कुल। तो ये आप उससे क्लियर करवा लें कि आपको नाक की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है या किसी और वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है. ओके?
आपको नाक की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है जी जी। या किसी और वजह से? नहीं, नाक बंद रहती है। सिर्फ नाक बंद रहती है? नाक का दायां तरफ बंद रहता है या बायां तरफ? कभी दाएं तरफ हो जाती है, कभी बाएं तरफ हो जाती है। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको कोई नज़ला या ज़ुकाम की शिकायत? जी, बलगम की शिकायत है। Try to ask the patient whether he is suffering from any other प्रॉब्लम? other than this nasal obstruction. तो इसके लिए क्या पूछेंगे? इसके साथ साथ आपको कोई और तकलीफ होती है जी नाक से? नहीं। नहीं होती? What? साथ कोई और तकलीफ Try to नहीं है? speak. Yeah, so I have to ask him whether he has some other problems or not. Right now you are taking Presenting complaints. presenting complaint. Yes. Okay. So what is the conclusion? So his chief complaint is nasal obstruction, obstruction. because that's exactly what makes him difficult in breathing. Okay. So- and how long he has been suffering from this? He's problem? been suffering from this problem since 6 to 7 years. Okay. Yes. And before that, he was in his usual state of health. Any other problem other than this He nasal obstruction? he reports no other problems. Okay. So you concluded presenting complaint, and how you will describe your presenting complaint? Okay, so according to the patient, he was in his usual state of health. No, I'm not asking about history of presenting complaint. I'm asking about presenting complaint. How you will describe his presenting complaint? My patient presents with a complaint of nasal obstruction since 6 to 7 years. For the last 6 to 7. For the last 6 to 7 Okay, years. the presenting complaint would be right or left It's nasal obstruction. right or left. It is intermittent between both of them. Okay. Patient is complaining of off and on Off on. Okay. On off. nasal bilateral nasal obstruction for the last 5 to 6 years. Okay? Repeat it again. The patient is complaining of on and off bilateral nasal obstruction for the last 6 to 7 years. Okay. Yes. Understood? So that is his major presenting complaint. Now we will proceed further and we will inquire about history of presenting illness. Okay? History of presenting illness, when the first sentence you will write, or when you will present your history, the first sentence would be the patient was in usual state of health. To write or to describe this sentence, how you will proceed? According to my patient, he was in his usual state of health for the last 7 years. When he noticed that he was feeling it was becoming difficult for him to breathe through mouth, through nose. Okay, you asked from the patient. Okay. तो आपको ये कैसे पता चला, मतलब आपको ये एहसास कब हुआ कि आपकी नाक बंद हो रही है, मतलब किस तरह से पता चला? पहले से ही पूछो कि आपने कहा कि 5-6 साल पहले you were okay and there was no problem. The patient was in usual state of health 5 to 6 years ago. तो उसके लिए पूछो ना, उसके लिए क्या सवाल पूछोगे? कि आपने कहा कि आपकी नाक बंद है जी हाँ। 5-6 साल से, ठीक है बेटा? तो 5-6 साल पहले आप बिल्कुल सही थे, आपको ऐसी नाक बंद होने की कोई तकलीफ नहीं थी, ठीक है? तो ये अब इसने बोल दिया और आपने पूछ लिया, तो आपका जुमला निकल के सामने आ गया कि द पेशेंट वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ 5 to 6 years ago. फिर क्या हुआ, आगे बढ़ा उसको? फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपकी नाक की तकलीफ डेवलप हुई? आपको कोई चोट वगैरह लगी थी? अच्छा, अब रुक जाएं। पहले आपने क्या पूछा था मरीज से कि आप 5 से 6 साल पहले बिल्कुल सही थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम. देन 6 or 7 points you will keep in your mind to proceed further. Which would be those 6 to 7 points? Those points would be number 1, onset. Number 2, progression. Number 3, duration. Number 4, aggravating factors. Number 5, relieving factors. Number 6, associated symptoms. और भी कोई ऐसी चीज़ पूछनी है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. ये बातें कौन सी हो गई? ये बातें वो हो गई जो आप मरीज से उसके उस सिम्टम के बारे में पूछेंगे जो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में पूछा है.
any symptom you asked during history taking of presenting complaint, you will have to explore that symptom under the heading of history of presenting complaint. And every line, every statement when you will present should be and would be in patient's language. Try to avoid any medical terminology. Bilkul, you will keep your लैंग्वेज सिंपल. तो इस तरह से अब आगे चले. तो अब क्या कंक्लूड किया हमने कि वो जो सिम्टम नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का है, उस सिम्टम के बारे में हम मरीज से पूछेंगे. शुरू में उसके वी विल इंक्वायर अबाउट द नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन. वी विल आस्क 6 क्वेश्चंस मेनली that I told you. उसके बाद we will ask some specific questions pertaining to that symptom. Pertaining to that symptom. ठीक. उस अब सिम्टम क्या है? नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड वो बातें जो इन 6 बातों के अलावा होंगी, we will ask from the patient. Okay? Now start. आपकी जो नाक बंद हुई थी, क्या वो अचानक बंद हुई थी या आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी? आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी. चोट लगी थी. अच्छा, बचपन में चोट लगी थी आपको, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी. और ये मसला हमारे ख़ानदान में भी है. ये मसला आपके ख़ानदान में भी है. ठीक है, उसके बारे में मैं आपसे पूछता हूँ अभी. अच्छा, तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता होने लगा था ये, ठीक है, 6-7 साल के दौरान ये हुआ है. अच्छा, ये वक्त के साथ साथ क्या नाक बंद होना मतलब ज़्यादा बंद होने लग गई थी या बेहतर हो रही थी? नहीं, बंद होना शुरू हो गई थी. ठीक है. और ये बताएं कि onset, duration, progression. I've asked the onset Okay, you keep on and asking progression. about onset. Now Yeah. we will ask about onset of the nasal obstruction. Okay, so I've asked him कि ये अचानक से हुआ था या आहिस्ता आहिस्ता हुआ था. तो he reported that it was gradual. Good. And It was gradual, so that would be progression. okay, so Okay? it was onset बोलो कैसे शुरू हुआ? How did you start that problem? जो आपकी नाक बंद है ना, वो आपकी नाक कैसे बंद हुई थी? कोई चोट लगी थी, अचानक बंद हो गई थी, या कोई ऐसा बुखार हुआ था, कोई एलर्जी के सिम्टम्स हुए थे, उसके बाद आपकी नाक बंद हुई थी? ऑनसेट का मतलब तो ये है ना कि हाउ डिड ही स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. okay. तो स्पेसिफिकली आप ऑनसेट का सवाल ऐसे पूछें कि हमें पता चलेगा. आप ऑनसेट के बारे में पूछें. ठीक है. आस्क. तो आपकी ये बीमारी जो हुई थी नाक बंद होने वाली, तो ये कोई आपके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया था कि जिससे आपकी नाक को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, कोई चोट पहुंची हो? जी. हुआ था. क्या वाक़या था? बचपन में चोट लगी. कोई पत्थर लगा था? जी. अच्छा, तो ठीक है. ट्रॉमेटिक हिस्ट्री. हाँ, तो मरीज ने कहा कि बचपन में इसको चोट लगी थी. जी. अब उसी बात को अब लेके आगे तक चले ना. ठीक है. आप ये नहीं सोचेंगे यार मुझे इससे वो इस बार सारे 6 पॉइंट्स पूछने. जी. इसी बात को लेके आगे चले. ऐसे चलेंगे, सुनने में हम लोगों को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप बातें कर रहे हैं उससे. ठीक. लेकिन आप बातें करते हुए वहाँ तक ले जाएं इसको कि आपके सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएं and you reach your diagnosis. So you inquired about onset. But you did not go into the details of that onset. That you will have to. All right. सही? How you will ask about the onset, Shabash? Okay. अच्छा, और इसके अलावा आपको कोई और चोट लगी थी? जी नहीं. और इस चोट के दौरान आपको कोई खून वगैरह आया था? जी. खून आया था? ज़्यादा खून आया था, कम खून आया था? ज़्यादा है. तो फिर उसके बाद इसका इलाज क्या किया? अब ये पूछो कि आपको चोट कैसे लगी? तो वो तो इन्होंने किस चीज से लगी? पत्थर से लगी. पत्थर से लगी. पत्थर से किसी ने पत्थर मारा था? कितनी दूर से पत्थर मारा था? टू सी द वेलोसिटी. कितनी दूर से मारा था? चोट लगी, उसकी वेलोसिटी क्या थी? करीब से ही मारा था. कितने करीब से? 2 फीट से, 4 फीट से? आमने सामने जैसे वो बैठे हैं तो उन्होंने आपको इतनी करीब से? पत्थर कितना बड़ा था? साइज अंदाजा इतना था? जी, अंदाजा इतना. ठीक इतना है. था. फुल पावर से मारा था या? अच्छा, ठीक है. हाथ से फेंक के मारा था. ओके. फिर वो आपकी नाक के किस हिस्से में लगा? अब ये उसकी डिटेल्स पूछेंगे कि पत्थर सामने से लगा, पत्थर साइड से लगा, नीचे से लगा, ऊपर से लगा, सिर्फ नाक पे लगा,
नाक के बिल्कुल ऊपर सर भी है, तो वेदर और नॉट ही सफर्ड फ्रॉम हेड इंजरी और नॉट, ये सारा आपको पूछना पड़ेगा। जी जी। अच्छा पूछो, और इससे ऑनसेट के बारे में डिटेल पूछो। ठीक है। और आप लोगों के जहन में कोई सवाल आ रहा है तो आप लोग भी पूछें, शाबाश। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि वो पत्थर का जो साइज़ था वो कितना था अंदाज़न? तकरीबन इतना था, ठीक है। और करीब से मारा था आपको या दूर से? जी, करीब से ही मारा था। अच्छा, और बहुत मतलब तेज़ी से मारा था, फुल जान लगा के? और नाक के किस हिस्से पे लगा था, आप ज़रा बता सकते हैं? यहाँ पर लगा था आपको? बिल्कुल, ये जो निशान बना ये पत्थर का निशान है? अच्छा अच्छा। इसके साथ आपको आपके किसी करीबी किसी हिस्से पे तो कोई चोट नहीं आई थी? आई थी या नहीं? अच्छा, यानी सिर्फ पत्थर आपकी नाक पे लगा, सर पे, आँख पे या चेहरे पे पत्थर नहीं लगा। जब पत्थर आपकी नाक पे लगा तो नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हुई? एक नाक से ब्लीडिंग हो रही थी या दोनों नाकों से हो रही थी? दोनों से हो रही थी। ब्लड सिर्फ नाक से आ रहा था, अंदर से आ रहा था, ये जहाँ पे आपको चोट लगी थी उस जख्म से आ रहा था? आपको याद है ये बात? नहीं, याद नहीं। लेकिन कुछ बताया होगा घर वालों ने कि नाक के अंदर से आ रहा था या ऊपर से आ रहा था? अंदर से अंदर से आ रहा था। बाहर से भी आ रहा होगा, जाहिर है चोट लगी। अच्छा, अब ये बताएंगे जो चोट में ब्लड आ रहा था वो ब्लड आपकी नाक के पीछे मुंह में तो नहीं गिर रहा था? नहीं, सिर्फ नाक के अंदर बाहर से आ रहा था, मुंह में से ब्लड नहीं गिर रहा था? सोच के बताओ। नहीं गिर रहा था। ओके। फिर आपको जब इतना सारा ब्लड आया और आपको चोट लगी तो फिर इर्द गिर्द के लोगों ने आपने उसके लिए क्या किया? डेटॉल से सफाई की। डेटॉल से सफाई की थी। और उसके अलावा सफाई तो आपने कर ली, लेकिन सफाई से खून आने में कमी हुई या नहीं हुई? हुई थी। सिर्फ सफाई करने से खून आना बंद हो गया? जी हाँ। अब आगे बढ़े, बात को आगे बढ़े। और इसके लिए आप हॉस्पिटल गए थे? जी नहीं। कोई इंजेक्शन वगैरह लगाई थी? वेरी गुड। तो ये दिस यू हैव टू आस्क वेदर द पेशेंट वाज कैरीड टू द हॉस्पिटल फॉर दिस प्रॉब्लम or not. According to the patient, he applied some Dettol or some dressing, and after that the bleeding stopped, and patient did nothing for that problem. ऐसे ही पूछे सवाल। आपने फिर इसके बाद उस चोट के बाद से आपने पत्थर लगने के बाद से डिटेल में ख़त्म कर दो बात। ठीक। आपने ये कहा कि जब चोट लग गई तो उस चोट के बाद आपको कहीं ले जाया नहीं गया, ठीक? यानी आप किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, आपने वहीं पे डिटॉल और पानी वानी लगा के उस चोट को सही कर दिया, उससे आपका ब्लड आना भी बंद हो गया और आपकी नाक में से खून रुक गया। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद आपने क्या किया? मतलब आपने फिर उसके बाद कभी भी किसी डॉक्टर को नहीं बताया? अब आप चाहेंगे प्रोग्रेशन की तरफ, प्रोग्रेशन ऑफ, यानी उसके बाद हुआ क्या ये पूछते हो। अब ये ना चोट लग गई आपको, ठीक है, आपने डिटॉल वगैरह सब कुछ कर लिया, इसके बाद आप किसी डॉक्टर को दिखाने भी नहीं गए, ठीक है, उस दिन से लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके उस वक्त आपकी सांस लेने की कोई शिकायत थी? जी हाँ। सांस में मतलब कोई तकलीफ थी? नाक में तकलीफ हुई सांस लेते हुए? जी। अच्छा, वो तकलीफ थोड़े दिनों के लिए थी? थोड़े दिनों के लिए थी। सही हो गए थे, खुद से सही हुई थी? जी। अच्छा, कोई दवाई नहीं ली थी उसके लिए? अच्छा, उस वक्त उस तकलीफ़ के साथ कोई नज़ला ज़ुकाम वगैरह कुछ था? नहीं था। अच्छा, और उसके बाद से कभी आपको खून आया था? देखो, अब ये द पेशेंट इज सेइंग दैट ही सफर्ड फ्रॉम तकलीफ, अब एंड यू आर नॉट। यस, ठीक है, आई गॉट यू। यस, पूछो किस तरह की तकलीफ थी? तकलीफ पेन और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तकलीफ, वो पूछो तो सही से। ठीक है, तो आपको दर्द हो रहा था या सांस लेने में शिकायत हो रही थी? नाक में दर्द हो रहा था जहाँ चोट लगी थी ना। और सांस सही आ रही थी? जी। ठीक है, तो सिर्फ पेन, इट वाज जस्ट पेन, ठीक है। और ये दर्द नहीं, अब आप सोच के बताएं मुझे बात कि जब आपको चोट लगी और नाक में से खून आया तो उसके बाद फौरन बाद आपको ये फील हुआ कि आपकी नाक में से क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। और दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग तो बंद हो गई थी, लेकिन उस वक्त आपने महसूस नहीं किया कि नाक आपकी बंद हो गई। ओके, अच्छा, फिर क्या हुआ? प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी ये जो अभी सांस लेने की जो तकलीफ़ है कि सांस नहीं ली जा रही आपसे, तो ये फिर उस वक्त के बाद से कितने टाइम में आपको ऐसा लगा कि आपकी सांस में मुश्किल हो रही है आपको?
शॉट के फ़ौरन बाद से मतलब कितना टाइम हो गया था फिर? एग्जैक्ट तो नहीं पता, अंदाज़न अंदाज़न सोच कर बताएं। 2.5-3 साल बाद। 2.5-3 साल बाद। अच्छा, 2.5-3 साल बाद आपको ऐसा लगा कि आपसे सांस नहीं ली जा रही है नाक के रास्ते। ठीक है। और ये बताएं कि ये जो सांस ना लेने का जो अमल है, ये उस वक्त भी एक ही नाक में था या दोनों तरफ था? अंदाज़न अच्छा चलो इसको सिंपल करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि वो दे दें, आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं हुआ कि आपको सांस लेने में कोई मुश्किल हो रही है, आपको सिर्फ दर्द हो रहा था? अच्छा, उसके कितने अरसे के बाद आपको फील हुआ कि आपकी नाक जो है वो बंद हो गई है? 2.5-3 साल बाद। 2.5-3 साल बाद आपने महसूस किया कि आपकी नाक बंद होना शुरू हो गई। अब आप इस तरह से करें कि उसको, मरीज को ऐसा नहीं लगे कि आप कोई बहुत ही मुश्किल किस्म के सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वे में आराम आराम से उससे पूछते रहे। तो 2.5 साल बाद आपको ऐसा लगा कि आपकी नाक बंद होना शुरू हो गई। अच्छा, अब ये बताएं कि नाक जो बंद होना शुरू हुई, आपने फील किया कि उल्टी नाक ज़्यादा बंद हो रही है या सीधी नाक ज़्यादा बंद हो रही है, या आपको ऐसा कोई फीलिंग नहीं हुई? उस वक्त आइडिया नहीं हुआ, लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो गया कि मेरी नाक बंद हो गई है। तकलीफ तो बंद होने को ही कह रहे हैं ना आप, बंद होना शुरू हो गई। अच्छा, अब 2.5-3 साल बाद जो नाक आपकी बंद होना शुरू हुई, वो उतनी ही बंद हुई थी जितनी अभी है, या उस वक्त शुरू में वो नाक ज़्यादा बंद थी? नहीं, शुरू में हल्की सी थी। अब नाउ यू प्रोसीड। ठीक है, शुरू में हल्की नाक बंद थी। कम यानी नाक बंद कम थी? भी नहीं की थी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, मतलब फील हो रही थी। अच्छा, सिर्फ फील होता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको ऐसा लगा कि आपकी जो नेजल यानी नाक बंद होने का मसला है वो ज़्यादा हो गया। चल, ठीक है। और उस वक्त आपको रात को ज़्यादा बंद होती थी या दिन में? रात में सोते वक्त बंद होती थी। तो उसके लिए आपने कोई दवा वगैरह इस्तेमाल की थी? कुछ भी नहीं, उस वक्त नहीं की थी। ठीक है। तो उसके कितने अरसे बाद आपने डॉक्टर को दिखाया फिर? ये सबसे पहले कब दिखाया था आपने? हमने रिसेंटली 2 साल पहले दिखाया था प्राइवेट, मतलब। ठीक है, 2 साल पहले आपने डॉक्टर को दिखाया था और उन्होंने आपको तो आप डॉक्टर को दिखाने के लिए मजबूर क्यों हुए कि आपकी नाक बिल्कुल बंद होने लगी और आपको उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी? यानी आपकी एक नाक बंद होने लगी या फिर आपको लगा कि ये तो दोनों नाकें बंद हो रही हैं, कभी एक बंद होती है तो दूसरी खुल जाती है, दूसरी बंद होती है तो एक खुल जाती है, या आपको नज़ला होना शुरू हो गया, या आपके चेहरे में या सर में दर्द होना शुरू हो गया, या आपकी नाक में से ब्लीडिंग आना शुरू हो गई? यानी ऐसा क्या हुआ कि आप डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ा नाक बंद होने की वजह से? ये बताओ ना मुझे डिटेल में। ऐसा आपको क्या हुआ कि आप डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर हुए? नाक में ऐसी क्या शिकायत पैदा हुई? एक्चुअली हमें जब ये तकलीफ़ नहीं थी तो हम भाग दौड़ करते थे, हमें मतलब उसके बाद दमा नहीं होता था। ठीक है। अब जैसे ये तकलीफ़ बढ़ने लगी तो उसके साथ साथ हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो भागते हैं, थोड़ा सा बहुत से आप भाग लेते हैं तो उसके बाद हमें मतलब सांस लेने में बहुत मुश्किल। अच्छा, तो क्योंकि आपकी नाक बंद होती है इसलिए भागने के बाद आपकी सांस घुट जाती है, यानी सांस में मुश्किल होती है। अब मुझे एक बात यहाँ पे यू विल हैव टू कंफर्म कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ओनली नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और देयर इज सम एसोसिएशन ऑफ ब्रोंकल एस्थमा, क्योंकि द पेशेंट हैज यूज्ड द वर्ड दमा। तो दमा आमतौर पे जब होता है जब आपको कोई मतलब चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, तो यहीं पे आप उसको क्लियर कर लें कि एलर्जी के सिम्टम्स तो नहीं होते उसको कोई साथ में ब्रोंकियल एस्थमा तो नहीं है जो कि एक्सेजरेट कर रहा हो, ऑगमेंट कर रहा हो ड्यू टू दिस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। वो कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको ये सवाल यहाँ पे से आप क्लियर करवा देंगे। ठीक है, आपने अभी मुझे बताया कि आपको दमा होता था, ठीक है, तो आपको वाकई दमा ही होता था? मतलब आपको मतलब कि सांस फूल जाना। ठीक है, सांस जो आपको फूलती थी तो वो क्या ऐसे कोई एलर्जी वगैरह होती थी आपको? यानी कि जैसे कोई धूल मट्टी हो गई या परफ्यूम मॉस्किटो कॉइल से होती थी आपको? उससे फौरन हमें जुकाम हो जाता था। देखो फौरन जुकाम हो जाता था। थोड़ी सी ट्विस्ट आ गई जी, इसको निकाल लो ना जो वो भी करते हैं। जी। अब इसमें ये ट्विस्ट आ गया ना, क्योंकि पेशेंट को पहले तो लग गई चोट, अब चोट लगने के बाद उसको आप ये समझेंगे उसको साथ में एसोसिएशन आ गई एलर्जी की। द पेशेंट इज ऑल्सो गिविंग हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज अलॉन्ग विद मतलब एलर्जी की वजह से ही सफर्ड फ्रॉम ब्रोंकियल एस्थमा।
अब आपको ये भी पूछना पड़ेगा इससे यहाँ पे कि ब्रोंकल एस्थमा आपको शुरू से था या अभी हुआ है, ये बताओ। बचपन में जो था आपको एलर्जीज होती थी, नज़ला, ज़ुकाम, सांस लेने में मुश्किल, आपके घर वाले कहीं आपको हॉस्पिटल में लेके जाते हो, छींकें आती हो आपको बहुत ज़्यादा, सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ होती हो, ऐसा नहीं होता था। यानी चोट लगने के बाद आपने ये फील किया कि आपको एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है और अब आपको एलर्जी ज़्यादा होना शुरू हो गई है। ओके, ऐसे ही है। चोट से पहले आपको एलर्जीज, दमा, नाक में से पानी आना, छींकें आना, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं थी। ओके, प्रोसीड। ठीक है, तो आपको चोट लगने के बाद चोट लगने के बाद आपको फिर ये सांस लेने की जो दुश्वारी है ये बढ़ गई। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि इसके बाद आपने जो गए थे आप डॉक्टर के पास, ठीक है, जो दवाइयाँ उन्होंने दी थी, तो उससे आपको कोई बेहतरी महसूस हुई थी? जी हुई थी। जी। अच्छा, उन्होंने स्प्रे दिया था, जाइनोसिन स्प्रे दिया था। ठीक है जी, वो लिख के दिया था। वो जब हम यूज़ करते थे तो थोड़ा रिलीफ फील करते थे। ठीक है, वो यूज़ करने के बाद रिलीफ, वो दिन में यूज़ करते थे या रात में यूज़ करते थे? जब तकलीफ होती थी तब यूज़ कर लेते। तकलीफ किस टाइम होती थी? भाग दौड़ में, आपको बताया। अच्छा, भाग दौड़ के दौरान जो। अच्छा, अब ये वाला जो कंपोनेंट है ना आपको, ये अभी रुक जाओ, अभी ये नहीं पूछो, ये उसमें पूछना जब मरीज आपका जो स्पेसिफिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की जब आप हिस्ट्री ले रहे होंगे, उसके फीचर्स पूछ रहे होंगे, तो उसमें आपको ये पूछना पड़ेगा कि भाई लेटरलिटी, विच साइड ऑफ द नोज इज ब्लॉक्ड मोर। अगर एक हो रही है तो एक के बारे में बताओ, अगर दो हो रही है तो दोनों के बारे में। या मरीज़ आपसे ये कहे कि कभी मेरी एक नाक बंद होती है तो दूसरी खुल जाती है, दूसरी बंद होती है तो एक खुल जाती है, ये बात आप उसको जब पूछो। अभी आप उन 6 पॉइंट्स पे काम करें मेनली, जो मैंने आपको बताए थे। जी, क्या क्या बताए थे? अभी ऑनसेट हो गया, यू हैव कंप्लीटेड। नाउ यू विल गो फॉर प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के बारे में क्या क्या सवालात पूछेंगे आप, जिससे आपको प्रोग्रेशन का पता चल जाए। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो ये नाक बंद हुई थी, तो इसमें वक्त के साथ साथ ऐसे आपके दाएं तरफ या बाएं तरफ ये जो ब्लॉकेज होती है, आपको ऐसा कभी लगा कि ये मतलब बढ़ गई हो, या अभी जितने एपिसोड्स आपको आते हैं फिर बाद में ऐसा हो कि ज़्यादा देर तक, यानी कि आप अभी तो खेल कूद के दौरान पूछो जी बेटा, तो आपने कहा कि आपकी 2.5 साल से नाक बंद। अब आप मुझे ये बताएं कि 2.5 साल पहले जितनी नाक आपकी बंद थी, आज भी उतनी ही नाक बंद है आपकी, या आपको ऐसे लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी तकलीफ में शिद्दत आती जा रही हो? यानी पहले नाक कम बंद होती हो, पहले नज़ले, ज़ुकाम, दमा के और इस चीज़ों के अटैक्स कम होते हों, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मसला बढ़ता जा रहा हो, ये बताओ मुझे। बताएं। अब असल में ऐसा होता है कि रात में एक मतलब साइड बंद हो जाती है, दिन में एक साइड खुली हुई होती है। दिन में एक साइड बंद होती है तो रात में एक साइड खुली हुई। पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं, पहले यानी आपकी नाक कम बंद होती थी। जी। अब आपकी नाक ज़्यादा बंद होने लगी। तो दिस यू इंक्वायर्ड अबाउट द प्रोग्रेशन। समटाइम्स द पेशेंट विल टेक यू इन अनड्यू डिटेल्स, या वो डिटेल्स होंगी भी, लेकिन आप उसको थोड़ा सा आगे जाके कवर कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने उस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि प्रोग्रेशन, उसका प्रोग्रेशन क्या हुआ। इनिशियली द प्रॉब्लम वाज लेस, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन increased day by day, and now he is just unable to breathe through his nose, या एक साइड बिल्कुल बंद हो गई तो दूसरी खुल गई। इसको लाके प्रोग्रेशन को इस तरह से आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था आपका? ड्यूरेशन बारे में पूछो कि ड्यूरेशन तो हम कवर कर चुके हैं शुरू में। उसके बाद अब आप क्या पूछेंगे? अब हम रिलीविंग और पहले एग्रावेटिंग और रिलीविंग, फिर रिलीविंग फैक्टर। तो अब मुझे ये बताएं कि आपकी नाक जो है ऐसे किस किस्म के काम काज करने से जो है ना ये बढ़ जाता है, नाक का बंद होना आपका? धूल मट्टी से बढ़ जाता है, मॉस्किटो कॉइल से बढ़ जाता है, ठीक है। नहीं देखो, धूल मिट्टी और मॉस्किटो कॉइल से नाक बंद होना में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है,
या एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ये बताओ ना मुझे। एलर्जी बढ़ जाती है, एलर्जी बढ़ जाती है, जुकाम, जब एलर्जी होती है तो नाक भी ज़्यादा बंद होती है। जी ये कह रहे जी हैं हाँ, ना। जी। अच्छा, इसके अलावा और कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ से आप ऐसा एक्सपोज हो जाते हो या कोई और ऐसा काम करते हो जिससे आपकी नाक ज़्यादा बंद हो जाती हो, यानी सर्दियों में ज़्यादा बंद हो जाती हो, गर्मियों में ज़्यादा बंद हो जाती हो, दिन के वक्त ज़्यादा बंद होती हो, कराची में ज़्यादा बंद होती हो या पेशावर में ज़्यादा बंद होती हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, मतलब एक ही जैसी बंद रहती है नाक आपकी, मौसम से और टाइम से उसका कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। ठीक, अब आगे पूछें। तो ये एग्रेवेटिंग फैक्टर्स ख्याल से इन्होंने सारे बता दिए। ठीक है, ठीक है, रिलीविंग फैक्टर्स। ठीक है, तो आपकी नाक जब बंद हो जाती है तो फिर उसको आप ठीक करने के लिए क्या करते हैं? स्प्रे यूज़ करते हैं। वही स्प्रे जो आपने अभी नाम लिया, क्या कौन सा स्प्रे? अब पहले ज़ाइनोसिन यूज़ करते थे, अब कौन सा यूज़ करते हैं? ज़ाइनोसिन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपने इसके अलावा कोई और स्प्रेज यूज़ किए हैं? बीच में नेज़ोमेंट भी यूज़ किया था। नेज़ोमेंट, और उससे पहले? उससे पहले कोई नहीं। यानी आप उससे ये पूछेंगे जो आपकी नाक बंद होती है वो नाक खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी नाक खुल जाए? कोई देसी टोटका करते हैं या किसी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब आपको लाइक कोई नाक में डालने के कतरे देते हैं या कोई दवाइयाँ देते हैं जिससे आपकी नाक खुल जाती हो, या कोई ऐसा एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसा पोस्चर करते हैं जिससे आपकी नाक खुल जाती हो? बताओ। स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं। जी, तो भाप लेने से आपकी नाक खुल जाती है। इसके अलावा और क्या करते हो? भाप लेते हैं, उसके बाद स्प्रे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्प्रे का नाम पता है आपको? कौन से यूज़ करते हैं? ज़ाइनोसिन। ज़ाइनोसिन से आप आदी हुए हैं और कितने अरसे से आप ज़ाइनोसिन यूज़ करते हैं? तकरीबन 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल से आप ज़ाइनोसिन इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी नाक खुल जाती है। जी हाँ। ये क्या कवर कर लिया आपने? रिलीविंग फैक्टर। अब उसके बाद आगे क्या चलेंगे? रिलीविंग फैक्टर्स वी हैव कवर्ड। अब एसोसिएटेड फैक्टर्स, यानी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ क्या क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, दैट वी विल हैव टू कवर। ओके, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ विच आर द एसोसिएटेड सिम्टम्स यू विल इंक्वायर। ठीक है, आई आस्क अबाउट एनी नेसल डिस्चार्ज और एनी पोस्ट नेजल ड्रिप मेनली, और स्नोरिंग एज वेल। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, रात को आपको खराटे आते हैं सोते हुए? खराटे नहीं आते? ठीक है, और ये बताएं मुझे कि नज़ला होता है इसके साथ? जी हाँ। नज़ला भी होता है, बलगम भी होता है, पीछे की तरफ गिरता हुआ बलगम होता है। ठीक है, उसके साथ गला ख़राब होता है, आपका गला भी ख़राब रहता है। अच्छा, गला कितना? गले में भी बलगम की शिकायत होती है। बलगम की शिकायत होती है, गले में भी होती है, ऊपर से भी, मतलब ऊपर से भी गिरता है, और मतलब नाक से भी निकलता है बलगम? जी हाँ, और गले से भी। ठीक है, और गले में आपकी तकलीफ़ भी होती है, यानी कि गला ख़राब भी रहता है? नहीं, मतलब तकलीफ नहीं होती, सिर्फ बलगम होता है। बलगम ख़राब नहीं रहता? खराब नहीं। ठीक है। अच्छा सर, सो बेसिकली द एसोसिएटेड फैक्टर्स दैट द पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड are the following. Okay. He said he has. You know what may be the associated symptoms along with nasal obstruction? Okay. Do you have a list? Yes, of I do. Associated symptom in your mind? Yes. Okay. So which associated symptoms will the patient will tell you, and other associated symptoms you will have to inquire from the patient. And which are those associated symptoms along with nasal obstruction? So nasal discharge. Very good. Post nasal dripping. Very good. Sore throat. Sore throat. Episodes of throat infections. Yes. Sore throat वही हो गया आगे। Fever. Allergies. Fever. And facial pain. Headache. Cough and yeah, earring problems. Hearing problems. Or ear problems. Ear problems. See? Yes. So these are some associated symptoms the patient can suffer. Yes. So I'll ask him again. अच्छा, तो मुझे एक बार फिर से मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, आपसे नज़ले की शिकायत होती है आपको? ठीक है, आपको बलगम की शिकायत भी होती है? ठीक है, ऐसा लगता है कि नज़ला पीछे हलक में गिर रहा है? ऐसा लगता है? इसके साथ साथ आपका गला ख़राब होता है? होता है? बलगम की तो बलगम से गला ख़राब नहीं होता? नहीं, सिर्फ बलगम गिरता है। अच्छा, इसके साथ साथ सर में दर्द आता है आपको? नहीं। आपके यहाँ चेहरे पे कहीं पर दर्द होता है आपको? नहीं। आपके कान में कहीं दर्द होता है? कान में दर्द नहीं होता, जब हम सफाई करते हैं नाक की थोड़ा ज़ोर से, मतलब तो हमारा कान बंद हो जाता है।
कान बंद हो जाता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, फिर वो खुलता कैसे है? खुद ही खुल जाता है। आपने एसोसिएटेड सिम्टम्स आप कवर कर रहे हैं ना, इसमें ईयर के जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ही इज सफरिंग फ्रॉम नेजल ऑब्स्ट्रक्शन along with nasal discharge, so probably the discharge would be dripping into the throat, leading to Eustachian tube dysfunctioning, and that Eustachian tube dysfunctioning will lead to the ear problems, and those ear problems may be hearing impairment, popping in the ears, kabhi kabar perforation of the eardrum leading to discharge from the ear, tinnitus, vertigo. These 6 symptoms at least you will have to take in your mind and you will have to inquire from the patients. Okay? तो अब आप ये बताएं मुझे कि आपने कहा कि नाक बंद होने की वजह से आपको कान में भी मुश्किल होती हैं, तो बेटा कान में आपको ऐसी कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं जिसकी वजह से आपको? नहीं, थोड़ी सी बस सुनने में मुश्किल, इस साइड से बस थोड़ा कम सुनाई देता है। एक साइड से सुनने में कम मुश्किल होती है? इसका भी यही होता है, कभी ये वाली साइड बंद हो जाती है, कभी ये वाली साइड। जी हाँ। फिर वो आप कान खोलने के लिए क्या करते हैं? करते नहीं है, खुद ही हो जाती है, खुद ही खुल जाता है, निगलने से या कुछ और करने से, या नाक बंद करके मुंह में कोई हवा भरते हो तो उससे कान खुल जाता है। कैसे करते हो बताओ? ऐसे कर लेते हो तो उसका खुद पेशेंट बता रहा है। अब ये एक्सपीरियंस से बहुत से पेशेंट जो होते हैं ना वो सीख जाते हैं कि अगर नाक बंद होने की वजह से कान बंद हो रहा है, देन दे डू वेल्जलवा टू ओपन देयर ईयर्स, उससे कान खुल जाता है। इसके अलावा आपको कानों में से कभी कोई पीप वगैरह या अप टू द पेशेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, जब तक आपके पास है, सामने आ रहे हैं, तब तक उसके साथ क्या हुआ वहाँ तक पूछना है आपको वहीं पूछ के थोड़े ख़त्म कर देना है। तो एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछ लिया। अब यू विल इंक्वायर अबाउट द जर्नल सिम्टम्स, कि पेशेंट को जर्नल सिम्टम नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो कोई नहीं होते। कोई बुखार तो नहीं होता आपको? नहीं। बुखार नहीं रहता। वज़न आपका एक ही जैसा है, कोई कम हो रहा घट रहा तो नहीं है। यू विल इंक्वायर अबाउट 3D, डिस्फेजिया, डिस्फोनिया एंड डिस्निया। कोई खाना खाने में मुश्किल, खाना अटकता तो नहीं है। सांस लेने में कोई मुश्किल होती हो आपको? सांस लेने में भी मुश्किल नहीं होती। कोई आवाज़ आपकी बदल गई हो, इस तरह से भी आपको नहीं होता। ओके, 3D पूछ लिया, बुखार पूछ लिया, स्लीप पैटर्न पूछ लिया, नींद सही आती है, अलावा इसके एक आध दफ़ा कभी कभार आपकी आँख खुल जाती है और नाक में से कोई बहुत ज़्यादा खर्राटे भी नहीं आते आपको, भूख प्यास सही लगती है, ये सब चीज़ें आपने पूछ ली। जर्नल उसके जो सिम्टम्स हैं, हाँ हिस्ट्री में आएगा? नहीं, उसमें भी आ सकता है, HOPC में भी पूछ सकते हैं आप। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर जो इसको प्रॉब्लम है उसके लिए उसने क्या किया, व्हाट डिड यू डू फॉर योर प्रॉब्लम। आपको जो ये तकलीफ हुई, जो चोट लगी, उसके बाद से आपकी नाक बंद हुई, तो फिर शुरू में तो आप कह रहे हैं कि आपको नाक बंद होना महसूस ही नहीं हुई। हो सकता है उसके वक्त आपकी एज कम हो, ग्रोइंग एज हो, तो बाद में जब आपकी एज बढ़ रही हो तो वेयर इज़ द, अब चलो वो इससे आउट ऑफ डोमेन हो जाएगी, वरना ये कॉर्नर स्टोन एरिया होता है, की स्टोन एरिया होता है जहाँ पे आपका अपर लैटरल कार्टिलेज मिल रहा होता है नेजल बोन के साथ। इफ दैट एरिया इज इंजर्ड, द ग्रोथ ऑफ द बोन कैन बी हैम्पर्ड इन फ्यूचर। इसीलिए कहते हैं कि सेप्टोप्लास्टी कुड नॉट बी परफॉर्म बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स, क्योंकि द चांसेस ऑफ डैमेजिंग दैट की स्टोन एरिया आर मोर, और मुंह बड़ा हो सकता है, नाक छोटी रह सकती है। ओके, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब पेशेंट ऐसी कोई बात नहीं बता रहा, और कहाँ तक पहुँच गए अब हम? एसोसिएटेड में 3Ds हो गए, जर्नल सिम्टम्स हो गए। अब आपने ये कहा कि आपको चोट लगी तो आपने उसके लिए कुछ ऐसा ख़ास नहीं किया, क्योंकि शुरू में आपकी नाक बंद नहीं थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी नाक बंद होना शुरू हुई। फिर आपने किसी डॉक्टर को दिखाया उसके लिए या नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। जब आपकी नाक बंद होनी शुरू हुई तो बेटा आप हॉस्पिटल में मेरे पास जो आके बैठे हो, वो कैसे बैठे? मोहल्ले में किसी डॉक्टर को दिखाते थे? वो फिर अपने इलाके के एक प्राइवेट क्लिनिक। हाँ, तो बताओ ना, डिटेल बताओ सारी बात। वो हमने डॉक्टर से रिव्यू किया, जो मतलब जो हमें मसला था, जनरल डॉक्टर जी थे, हाँ, उनके पास आप गए और उन्होंने जी हाँ, उनको आपने बताया कि भाई मेरी नाक बंद रहती है। जी हाँ।
तो फिर उन्होंने आपको क्या बताया? उन्होंने हमें ये स्प्रे यूज़ करने का। ठीक है, उसके साथ वो आपको वक्ती तौर पे दवाइयाँ देते रहते थे। लेकिन जब आपको ये प्रॉब्लम बार बार होने लगी तो फिर आपने क्या किया उसके लिए? हमें स्प्रे डेली यूज़ करना पड़ रहा था, इसीलिए हमने इधर। तो आपने सोचा कि अब मुझे किसी नाक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो नाक के किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आपने अपने मोहल्ले में दिखाया? नहीं, इधर ही सिविल में। आप डायरेक्ट यहीं पे हमारे पास आ गए और यहाँ पे आगे आपने उसको दिखा दिया। तो अब यहाँ डॉक्टर्स ने आपको कोई टेस्ट कराया हो, कोई और चीज़ें हुई हो, या इससे पहले कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ हो, कोई प्रोसीजर ऐसा हुआ मोहल्ले में किसी ने आपको कहा होगा आपका गोश्त बढ़ गया है हम जला देते हैं, या कोई नाक की सफाई कर देते हैं? प्राइवेट क्लिनिक पे दिखाया था हमने, उन्होंने यही बताया था कि आपके नाक की हड्डी जो है टेढ़ी है। तो उन्होंने सिर्फ यही बताया था ना आपको, उन्होंने कोई ऑपरेशन तो नहीं किया? नहीं किया, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे पहुँच गए सिविल हॉस्पिटल, और यहाँ पहुँचने के बाद आप दाखिल हो गए और कुछ आपके यहाँ पे टेस्ट वेस्ट हुए हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया? हमें यही बताया गया है कि आपके मतलब कार्डियक फिटनेस वगैरह करवाएं, ये सब मतलब जो जो उन्होंने पहले बोला। बेहोशी की फिटनेस होगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सर्जरी होगी। सर्जरी होगी। तो आपको कुछ पता है अभी कौन सी सर्जरी होगी? हड्डी की सर्जरी पता है तो होगी। बता दें। बता दोगे? पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो हम आपको बाद में बता देंगे। बताए थे बता दें। सेप्टोप्लास्टी। हाँ, तुम्हें तो बहुत पता है। मैं तो समझ रहा था कि तुम कहोगे नाक की हड्डी का ऑपरेशन होगा। वेरी गुड, द पेशेंट सीम्स टू बी एजुकेटेड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में, शाबाश, वेल डन। अच्छा, अब यहाँ पे आके यू विल कंक्लूड योर HOPC. Now I will ask you to compose your presenting complaint and HOPC, and now you will present this HOPC and presenting complaint in your words. Okay? अब लगा लो। So there's just one question. These ending questions that you just asked, are we supposed to include them as well? Yes. That the patient already knows about his procedure now? You should include, You should, because this okay. is part of history of presenting illness. जहाँ तक मरीज आके बैठा हुआ है, अभी तक उसकी इलनेस है और ये उसकी हिस्ट्री है, तो ये यहाँ तक आप पूछेंगे। Alright. अब आपने कंक्लूड कर ली, Yes. आपने हिस्ट्री ले ली, अब आप एक्सटेम्पोर होके बताएं विदाउट एनी प्रिपरेशन कि व्हाट इज योर पेशेंट। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द बायोडाटा, यू विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंटिंग complaints and you will finish. All right, I'll do my best. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, so basically, my patient who came via OPD, he has the complaint of nasal obstruction, which is associated with nasal discharge and post. नेजल डिस्चार्ज का उसने बताया ना आपको? जी बताया तो था। आपने डिस्चार्ज के फीचर्स पूछे वहाँ पे? उस वक्त अभी तो नहीं पूछे थे मैंने। तो पूछने चाहिए थे ना। अगर उसे डिस्चार्ज है तो यू विल इंक्वायर अबाउट द फीचर्स ऑफ नेजल डिस्चार्ज ड्यूरिंग योर HOPC. आपने कहा आपकी नाक में से गंदगी आती है। अच्छा, अब वो जो गंदगी आती है तो डिस्चार्ज की सारी बातें पूछनी है कि वो गंदगी का रंग कैसा होता है, उसका कंसिस्टेंसी गाढ़ा होता है या पानी की तरह होता है? बताओ। गाढ़ा होता है। उसका रंग कैसा होता है? हरा, पीला, सफ़ेद? कलरलेस हो जाते हैं, कभी कलरलेस हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी ग्रीन भी हो जाता जी है। जी। ओके, वो बहुत ज़्यादा होता है, कम होता है, कितना होता है 24 घंटे में, ये पूछना है। उसमें स्मेल तो नहीं होती, वेदर इट इज़ फाउल स्मेलिंग, वेदर इट इज़ ब्लड स्टेन और नॉट। मैं असल में भूल गया था कि तुमने उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में हिस्ट्री ऑफ नेजल डिस्चार्ज भी है। आपको नाक बंद है या और भी कोई तकलीफ है? सिर्फ नाक बंद है ना। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ डिस्चार्ज यार, तो उसको क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? इसके साथ आपको नज़ला नहीं आता? नहीं, ये यहाँ नहीं पूछेंगे आप, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स में पूछेंगे। अब देखो, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मैं कैसे लेता हूँ उसको आप देखें। अच्छा, आप जो हमारे पास हॉस्पिटल में आए हैं वो किस वजह से आप अस्पताल में आए? हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, और डॉक्टर से हमने रुजू किया था, उन्होंने भी बताया था कि आपकी सर्जरी होगी। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, आपको तकलीफ क्या है जिसकी वजह से आप
हॉस्पिटल में आए? बाकी चीज़ें तो अभी हमने आपसे पूछ ली ना सारी। आप मुझे ये बता, किस वजह से आप अस्पताल में दाखिल हुए? जी, वजह ये है कि हमें मतलब सांस लेने में मतलब फ्रेश फील नहीं हो रहा, और सुबह को हम उठते हैं तो मतलब थोड़ा डल फील करते हैं। ठीक है, यानी आपकी नाक बंद है और नाक से सांस नहीं आ रही, बाकी सीने वीने से तो सांस आ रही है। तो आपकी सांस, नाक बंद है, एक नाक बंद है या दोनों नाकें बंद है? कभी एक, कभी मतलब कभी आपकी एक नाक बंद होती है, कभी आपकी दूसरी नाक बंद होती है। और ये कितने अरसे से आपको तकलीफ है? तकरीबन 4-5 साल से। 4-5 साल से आपकी कभी एक नाक बंद होती है, दूसरी खुल जाती है, दूसरी बंद होती है, एक खुल जाती है। ओके, इसके अलावा और कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? भी नहीं, कुछ भी। कुछ भी नहीं है। तो तुम उसे कंफ्यूज नहीं करो, इसी को बताओ जो इसने बताया। ठीक है. सो माय पेशेंट वाज इन हिज यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ. नहीं, पहले आप मुझे दोबारा से बताएं कि व्हाट आर हिज या व्हाट इज हिज Presenting complaint. So his presenting complaint is nasal obstruction, which is bilateral, off and on. जी. Off and on bilateral nasal obstruction ओके, फॉर द लास्ट 7 years, 6 to 7 दो years. पार्ट है। क्या प्रॉब्लम है, व्हाट ही इज सफरिंग फ्रॉम, And since when? एंड हाउ लॉन्ग For ही how? हैज बीन सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो ये आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। रिपीट इट अगेन प्लीज। All right. So my patient has presented with a complaint of bilateral on and off nasal obstruction for the last 6 to 7 years. ओके, स्टॉप। अब से करो। Yes. यस, स्टार्ट। My, my patient was in his usual state of health since the past 6 to 7 years when he met a traumatic accident with a stone injury to the bridge of his nose, which has a scar mark on it right now as well, which resulted in bleeding, and they applied self remedies, home remedies on it, Dettol, etc., due to which the bleeding was stopped. The bleeding was internal from inside the nose, and it stopped. After the bleeding stopped and the nose was recovered, he did not visit any doctor nor was taken to the hospital. He improved after that, but 2 to 3 years later, he observed that it was becoming difficult for him to play on field, and he was losing his breath a lot earlier than usual. So then he because of these complaints, he was forced to visit a local GP who gave him some on-the-counter medications to relieve his symptoms. On-the-counter medicines. He prescribed some medicines to relieve his nasal obstruction. Those medicines included a nasal spray, Zynosine, and also, was there something else as well? उसमें आपको कोई दवाइयाँ तो नहीं देते ना डॉक्टर? Steam and Zynosine spray. And after that, gradually his condition, nasal obstruction, according to the patient, worsened over time, and because of that, he visited the GP who recommended him. He often and on visited his local general practitioner. He often and on visited his local general practitioner, who came to the conclusion of who diagnosed his condition of deviated nasal septum and recommended surgery. This you will describe in the last part. Okay. लेकिन अभी तो आप progression बताएं। Yeah. Okay. Progression. उसके बाद aggravating factors बताएं। Sure. Yes. Sure. His condition was becoming worse over time, and according to the patient, this condition was aggravated by allergic factors such as dust particles and mosquito coil, and his condition became worse, especially at night when he couldn't sleep. And he woke up from sleep as well occasionally. And these were the aggravating factors, allergic factors, which gave an idea of as bronchial asthma as well,
but upon further inquiry, bronchial asthma was excluded. Then after this, he after progression, duration bhi ho gaya. Yeah, so aggravating factors, and now these conditions were his condition was relieved by the same nasal spray, xylosine, at night. And then his condition has some, according to the patient, he also suffers from an associated post-nasal dripping. And with that, he complains that he does sometimes cough as well. And most of the times, he's not giving history of coughing. Yeah, he's not giving history of coughing, and he does not give any history of sore throat either. And apart from that, he does not give any history of facial pain or headache or any significant history of ear blockage. He did have discharge from ear in childhood, but after that, he has not complained of such conditions. Okay, and then apart from that, this patient has been recommended surgery. Recommended to tell us about the specific features of nasal obstruction. Okay, yes. Sorry. So the specific features are that his nasal obstruction is intermittent in nature and is bilateral. So at times, one side of the nose is blocked, whereas on other occasions it's the other side. But at times it's meaning it's unilateral but intermittent and was it complete or variable? Partial? It's partial. So there is partial blockage of the nose. And tell us about relation of season or. And he does not report any relation with season. Yeah, the time is that it is mostly aggravated during the night time, and during the daytime it isn't aggravated, but it still persists during the day. And I guess that completes this part. No. There's still no history of fever. There is no history of fever. Yes, so in general inquiry, the general features are unremarkable without any history of fever or weight loss, and or any complaints of losing appetite. Appetite also is normal, and at night the sleep is also normal except for a few episodes of waking up at night. And during the early morning he feels as if he's not fresh, and the sleep, the quality of sleep isn't good. And is that all? There is no history of eye problems. Yeah, there is no history of eye problem. Headache बताओ. Yes, sir. Related सारी जो पूछी थी वो जो पूछा वो you have to tell us. So there is no significant history of eye problem except for some discharge that is very occasional from the eyes, that is watery and happens very occasionally. Okay. Yeah, and then there is no history of headache, and there is no history, any significant history of ear pain or ear discharge, except for the fact that ears occasionally get blocked. But that's also unilateral and is variable. So it varies between both the ears, and at times it's one ear. No history of tinnitus, vertigo, or ear discharge. However, there is history of ear discharge earlier in his childhood. But it's not significant. No, it was significant. He had history of ear discharge, and that discharge remained for how many months? That discharge was for how many? 1 to 2 months. But that was before this episode. Yeah, it was way before this. And nasal obstruction. Okay? Yes. So उसके बाद और बताओ. And then I guess this finishes off the associated. There is no history of dysphagia. Yeah, no history of dysphagia, dyspnea, and dysphonia. And what else? And sorry? अब बस में आगे देखो.
There is no history of dysphagia, dysphonia, or dyspnea. and dyspnea. Or Yes. what else? And the patient was referred to this hospital by his For his problem, the problem. The patient visited his local GP doctor multiple times, who prescribed him some medicines to relieve his nasal obstruction. But finally, he asked the patient to report to a tertiary care hospital, to a tertiary care ENT to a surgeon hospital, to an ENT for surgeon. his deviated nasal septum. For his deviated So nasal the septum. patient reported to our hospital, and now he is admitted for his surgery. Okay, so the patient took multiple visits to his local general practitioner, who used to give him relieving medications, but finally he referred him to an ENT specialist for a deviated nasal septum. Okay. So he came to us with this complaint. That's how we will complete our history of Presenting complaint. Understood? Yes. Any question, query, any question? Got it, sir. This one. Thank you so Up much to for my coming. brother. Okay. So Thank you, Mehtab. Your history taking. Now Yes. I will thank the patient. Yes, sir. He was a very cooperative, intelligent, and educated patient. Yes. And we thank him. Yes. So, Mehtab, thank you so much for your time and your cooperation. And wish you best of luck for your future. And you are also a medical aspirant, right? Yeah, so he also plans on becoming a doctor. That's good. Work hard. Work hard. Okay. Thank you very much.